हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो नए जोश और नए जुनून के साथ। टुडे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सर, हमारे फेवरेट सर प्रवीण दहीफुले सर। अब प्रवीण दहीफुले सर कौन है, क्या करते हैं और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट क्यों है, वो धीरे धीरे आपको पॉडकास्ट में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि सस्पेंस भी बना रहे और आपका क्वेश्चन भी। Pravin Dhayfule sir, CEO of Cyber Technology Solutions, 20 plus years of experience in team building and product transformation expertise. Pravin sir, I, Amay Thakkar, and our family, Amay LifeLens, welcomes you on our podcast and on our channel. Welcome, sir. Sure. Thanks a lot. Yeah. Sir, please brief about yourself to our honorable audience. I mean, you already provided my introduction brief. It's like I came into IT industries in somewhere around 1996 as a student, and my first job was in 1998. So logically, back then, IT industry was not that formal industry. So I was somewhere around 18, and while I was studying in KJ Somaya and KJ Somaya in Mumbai, it was an ITI. So during the evening, I was to visit Aptech Computers Technologies for my diploma in computer software engineering, and during the day, I was learning electronics. So it's like, so at a very young age, I was kind of planning my career on my own. So during those days, just like today, you have lots of guides we didn't have. So I had to actually, so my vision was clear. I wanted to get into electronics and computers. So that's how I started. And from there, in 1998, I got my first job when even I was a student. So it was like, so I was teaching in college where students were of my age. So likewise, I kept moving on my journey, and my education was not that formal like full time. So I was doing distance education for my graduation and parallel. So my education and experience gaining was parallel, but it was not easy. It's very tough because you have to focus on your studies as well as you want to focus on the practical things. So my only advantage was I was studying and also obtaining practical things in parallel. Likewise, I went ahead and learned lots of things. I started as a trainer, and then I went ahead became a web designer, content developer. I even learned hardware networking. So if you see me as a professional, I didn't stick myself as a developer or designer or network engineer or anything. My philosophy is if you want to learn something, learn it on your own, and whatever comes in your way, just do it. एंड कोइंसिडेंटली मुन्ना भाई मूवी में भी एक डायलॉग था कि मुझे स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, कि हाथ के डॉक्टर को नहीं पता पैर में क्या चल रहा है, पैर के डॉक्टर को पता पेट में क्या चल रहा है, वो फुल डॉक्टर बनने गए. My goal was I want to become a full-fledged IT professional. So today I have some kind of expertise in cybersecurity. I have in terms of banking and finance. So multiple domains I got to lay my hands on. And today I teach people, I teach professionals how to build a digital product right from inception stage to releasing the MVP just in 6 months. So that's all about me. And you can know about me more on my LinkedIn page or my website. It's dhaipule.com. या Yeah. सर की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं डाल दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हो या फ्यूचर में आपको सर की नीड हो, यू मे गो फॉलो हिम and ask your questions to him. Sir, as you told in your brief introduction, you are in the IT industry. So my question arises, you have been in the IT industry since past 20 years, playing a role Yeah. of innovator as well as leader. What were your Mhm. challenges in terms of managing people from different backgrounds and personalities? The point of view is like, so when you speak about people, as I told you, I started my early days as a trainer. So coincidentally, I was just 18 years old, and the students were around the age of my father. Especially when those people, it was like when it started when Maharashtra government wanted to teach all the government employees. They wanted to enable them on computer knowledge, and then it was like they were most of them were sent just because they had to come. The government was sending them. Now it's like as a trainer, I was a leader for them. Like I wanted to bring them from zero to at some level of computer knowledge. That too when they were not willing to do. So that was a challenge. So first and foremost thing, I what I needed to do is I wanted to empathize with them. I wanted to understand their core personality. Similarly, after exploring the core personality, I got to know the psychology, and based on that, it became easier for me to teach them in their language. When I kind of progressed in my career, I came across different people. And one thing which I realized is like as a leader, the first and foremost responsibility on me is like had to do the things and teach them like how to do it. Basically, a leader is also a mentor by default.
So when we think about different personalities, I throughout my 20 years of journey, I kind of found people. There are four kind of people, and it's like it's my philosophy, not in any psychological books or something. So it's like there are four type of people. One set of people I call them water people, who are very transparent. You know, you clearly know what they are up to through their actions, through what they speak, and they're straightforward. They speak up their mind, and you know that okay, whatever they are saying is true, and you can rely on them. Mostly water people are very good leaders because they don't hide things. They tell you upfront and they give you proper guidelines. They have transparency in the team so that nothing goes haywire. Other set of people are syrup people, just like syrup. Water people are totally transparent as their name is. Syrup people are like, as you know, syrup are salty and sweet kind of. They mix with different liquids. Correct. When they mix with alcohol, they become cocktail, and when they mix up with water, they follow what the water is. So now syrupy people are more of a kind of flavory. You may find them to mood swinging type. Sometimes they're very good to you, and sometimes you feel that okay, he or she is very selfish. Now, what they do is they are very choosy while selecting the friends. It's like they actually believe in the philosophy: friend in need is a friend indeed. What they do is they when they choose their contacts or they choose their acquaintances, they always prefer to have those people who will benefit them. And as the reason why once the benefit gets over, they tend to change the way they speak to the people. And it's like those people kind of are those people who actually are not that reliable because they may leave your back when they are in danger. Third type of people are ethanol. I mean, the alcohol. As you know, alcohol is like when it goes inside, a person gets completely mesmerized and thinks that he or she is a king or they lose the path. So, ethanol people are those people who actually know that if this opposite person is more capable of me, I need to mesmerize him. So they start mesmerizing them. Either they threaten them or mesmerize them or they mislead them. So at such a level that the person thinks that okay, he is the person who is my guide and mentor, and if I don't listen to him, I will lose my path. But he Correct. exactly is the opposite. So they misguide the people. They actually try to dominate them. They misguide them, and they feel that what they say is only true. And they if the people who are with them they kind of leave their path or leave their support, they will be nowhere. And the fourth type of people are explicitly oil people. And oil, you know, it's viscous, it's kind of slippery, it doesn't mix with any liquid. So those are those people who are sort of very dominant in the nature. They think that we know everything, we don't need anyone's support, we are independent. So they don't mix with anyone, but at the same time they try to dominate. If they feel that someone else is going ahead, they ensure that how can I take that person out of my path. And evidently, just like in is physics, like alcohol is lighter than water. They always fall trap to the ethanol people because ethanol people know how to use them. Using Correct. their kind of dominance, they try to mesmerize them and they use as a tool to actually trap others or वो तो कंधे पे बंदूक रख के चलाना. चलाना, तो हाँ. जिससे कंधे पे बंदूक रखता है, those are all people और चलाने वाला है ethanol. So these are the so once you get to know every personality type, you can take advantage of them and you can actually give them a right path. So for example, the kind of people who are syrup people. Syrup people are very good in terms of team play. So once they are told that okay, this is your benefit, you will work this way, then they follow the path and they excel as well as the team excel. Water people make good leaders because they're transparent, they don't lie, they actually try to bring out because it's their internal instinct that they want to clean the things. The water cleans everything. So they always try to bring the best out of you. Although they are kind of straightforward, they always face the backlash. Then comes to the ethanol people. Ethanol people can be good as marketing people and sales people because you know in sales and marketing you need more of an influencer type of people. So they become more influencers, the ethanol type of people. And then for them as a leader, I know okay, if I put that person in the area in which is helps in pre-sales or which helps in kind of negotiating with the client, they are good with that. So you need to know the personality type and where to place them. Oil people can become good individual contributors or freelancer type because we know that they excel in when they're alone. So although they work like working solo, you can engage them such a way that they feel that they are independent, but actually they're helping the team. This is how you juggle between the people, and this is what I have been doing since last 20 years, trying to understand people what they are and this actually will help managers and leaders if they are able to identify because this comes to next thing like how you can make your team as a jigsaw and not as dominoes. Because when you make your team as a jigsaw, what happens is in jigsaw it's like every piece is dependent on other piece. Every piece is important. The team cannot be complete until every
every piece gets joined, that in the right form. So there might happen that four people get along, and those four people get along with someone else. So it becomes a jigsaw. Correct. Dominoes, everyone thinks that I'm great, and if one falls, it makes everyone fall. Fall. So you need to decide as a leader whether you want to build a team of dominoes or a jigsaw. Jigsaw. Hope I answered your question. Yeah, definitely. So this session is for all the youngsters, all the students and everyone. जो चाहे बड़ा Mhm, हो या चाहे छोटा हो या जो स्टार्टअप कर रहा हो, जो स्टार्टअप mhm, कर रहा है उसके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टीम के बिना कुछ नहीं हो और टीम आपके mhm, बिना कुछ नहीं है। mhm, अब सर ने टीम बिल्डिंग के 4 फॉर्म बताए हमें। एक कोल्ड है, जो कोई होगा आपकी कंपनी के अंदर जो बहुत ज्यादा हाइपर होगा कि अरे यार भाई नहीं यार ऐसा नहीं वैसे। एक जो है बहुत कोल्ड होगा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं। एक थोड़ा कंफ्यूज होगा कि हाँ भाई तेरी भी रखी रही तेरी भी रखी रही। तो इन सबको मैनेज कैसे करना है सर ने बेस्ट एग्जांपल दिया अभी सभी का मिला के। तो ये सेशन है आप सभी के लिए, और लास्ट तक जरूर जुड़िएगा क्योंकि लास्ट में कुछ सरप्राइजेस है आपके लिए फ्रॉम प्रवीण सर। So, sir, second question from my side is, what do you think is an effective method for building a high-performing team? Yeah. So as I told you, it's like first and foremost thing is जैसे मैंने बताया चार टाइप का personalities. Correct. So you need to understand them. So अगर टीम चाहिए, so most important thing in a team is you need to complement rather than compete. Now unfortunately हमें बचपन से सिखाया जाता है कि you need to compete. पेरेंट्स हम लोग रैट रेस में भगाते हैं, वो अपना इंडियन कल्चर है, आई मीन आई कैन ब्लेम एनीवन, बट देन इट्स लाइक बचपन से ये स्कूल से फॉस्टर होता है। तो Yes. फर्स्ट रैंक, ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना, ही इज फर्स्ट रैंक, ही इज सेकंड रैंक, ही इज थर्ड रैंक, उसमें होता क्या है ना, यू जनरेट जेलसी, यू जनरेट अ सेंस ऑफ कंपटीशन, बट अब सेंस ऑफ वो हेल्थी नहीं होता। जो Correct. रेवेन्यू जो रिन्यूमरेशन सिस्टम है यहाँ पे कि लाइक ये फर्स्ट क्लास है, फिर घर में ताने सुनो अरे उनका बेटा कैसे पढ़ता है, सो इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल बैरियर डेवलप होता है हम लोग के माइंड में। उसके से वही बैरियर लेकर हम लोग स्कूल छोड़ते, कॉलेज और भी हम लोग कॉर्पोरेट्स में आते हैं। कॉर्पोरेट्स में विद इन द टीम इट नाउ कॉर्पोरेट्स में पूरा गेम प्ले चेंज होता है। इन कॉर्पोरेट्स और इन योर एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट योर टीम। अब टीम में कैसे होता है, सम आर डेवलपर्स, सम आर डिजाइनर्स। सो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे मैंने जिक्सॉ का एग्जांपल दिया, इन जिक्सॉ एग्जैक्टली, जिक्सॉ में क्या होता है, हर एक पीस की अपनी एक अहमियत होती है, एवरी पीस हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस टू फिट अलोंग। व्हाट इफ यू कट ऑफ सम piece just because it doesn't look good, Okay. your entire puzzle will not be complete. Similarly, in a team, if you start competing in such a way that you come up with a negative politics and you try to get rid of a team member because you don't like him or her, or sometimes managers tend to have favoritism and they always prefer to hear from one person. No matter what other person says, whether it's relevant or not, sensible or not, they are cut off. So here they are actually cutting off the piece of the jigsaw, which actually then translates from being a jigsaw team to a dominoes team, because everybody wants to make each other fall so that they can get visibility. Correct. The most important part of team management or as a team player is to complement a team member. So what complement means? Yeah, suppose I am skilled in something. So as a leader, I need to know like what are the different skills of different people, what are the strengths of different people, and what are weaknesses. How is the other team member complementing the person's weaknesses? So that your team can run effectively rather than only focusing on weaknesses and then saying okay तुझमें ये कमी है तू यार improve कर, नहीं तो चले जा. So layoffs happen just because of that, and internal team politics, people don't realize that it's actually hampering them. So to build a healthy and effective team, it's more important to analyze the people, to bring up people together, turn your team from dominoes to jigsaw, and actually help people realize the strength, weakness, also how they can complement each other. It all comes from a leader. Because if the leader himself is a person who likes sugaring, your team needs to go away. Correct. I hope I answered your question. Yes sir. बट सर ये मेरा क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन साथ में ऑडियंस का भी क्वेश्चन है। जैसे आपने लीडर वाली बात कही अभी, एक लीडर के अंदर भी तो सर एक वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन शुरू शुरू में होता है, लेकिन एट लास्ट वो जब 10-20 लोगों का कमिटी बन जाता है, जब उनके साथ वो काम करने लगता है, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में वो भी डिमोटिवेट होता है। तो वो मोटिवेट कैसे रहे इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? Yeah, I agree with your point, and this situation has come with me also. See, the problem कैसे होता है ना कि first you need to know who is a leader. वो लिंक्डइन पे जो होता है लीडर वर्सेस बॉस, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट ना जो लोग डालते हैं ना उनको बॉस ही प्रीफर करते हैं। तो लीडर का मतलब क्या होता है, लीड, हु कैन लीड। नाउ सपोज पांच छह लोग एक ग्रुप में एक जगह पे फंसे पड़े और वो सब सोच रहे क्या करे क्या करे क्या करे। नाउ इन दैट ग्रुप व्हाट हैपेंस इज
Leader is not a position or a job title or role that is given to you. Leadership is a trait that comes in you through your deeds. Leadership is something that you earn. कोई आपको बोलने भाई तू लीडर है आज से। करेक्ट। मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता था, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की होगी कि भाई 5 लोग बैठे, एक चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया, कई तो फंसे पड़े, अब जहाँ निकले वहां से सब लोग अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, पर कुछ एक्ट नहीं करते, नहीं यार डरते, कंसर्न होता है कि कर तो सकते पर करूंगा तो अटक जाऊंगा। उनमें से कोई एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिन जो लोग हिम्मत करते हैं और एटलीस्ट दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक जैसे झरना क्रॉस करना है। कुछ लोग खुद जाके झरने में पैर डालते हैं, बोलते हैं, भाई हाथ दो। जो लीड करते हैं, मैं हूं यहाँ पे, टेंशन मत लो। करेक्ट। तो वो करेक्ट। जो पर्सन होता है ना, दैट बिकम्स ए लीडर ऑटोमेटिकली। और बाकी लोग भेड़ बकरियों की तरह उनको फॉलो करना पड़ने लगते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम होता है ना मोटिवेशन डिमोटिवेशन का, द पर्सन फर्स्ट नीड्स टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई है। लाइक फॉर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई वाज वर्किंग इन वन कंपनी, आई वाज काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ बिग टीम। सो क्या हुआ था, समवन टोल्ड मी कि भाई हम लोग के पास अप्रूवल्स नहीं है। मैं बोला भाई अप्रूवल्स नहीं तो ठीक है ना, करना तो है हम लोगों को, क्योंकि उसके बाद करेंगे क्या, उसके लिए तो सैलरी मिलती है। सो बोल नहीं नहीं यार बहुत चैलेंजेस है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, नहीं वो नहीं। मैंने उनको ये भी पूछा भाई आर यू गाइस कमिंग विथ मी और नॉट। सो वो लोग नहीं हम लोग को डर है या ऐसा वैसा। ठीक है भाई तुम लोग करो या मत करो, मैं तो अकेला कर लूंगा, जिसको आने में साथ आ जाओ। करेक्ट। एंड देन आज क्वेश्चन, तुम लोगों को क्या बनना है? वो लोग उस भीड़ में जाना है जहाँ जो ताली बजाते हैं दूसरों के लिए, या किसके ताली बजाने की वजह बनना है, डिसाइड आपको करना है। So this way it's like told them, and then one, two people started coming, and then it's like people started cooperating. When they started seeing the results, of course. So उसके लीडर को पहले कूदना पड़ता है आग में, तब जाके पीछे के लोग आते हैं कि हाँ ठीक है भाई। So it's like a leader is the person who has to take initiatives, करेक्ट। or व्हाट else he will be demotivated for the whole life. करेक्ट। अभी व्हाट डेफिनेशन वी लर्न अबाउट लीडरशिप इज कि जो मैनेज करता है पीपल को या लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन रखता है, ये सब हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया जाता है, लेकिन नहीं। वो जो डेफिनेशन है वो लीडर का नहीं है, वो मुकादम का डेफिनेशन है। वो कंसल्टेंट होता है ना मुकादम, भाई तू ईट चढ़ा, तू रेती चढ़ा। लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट हैज बीन काइंड ऑफ बिकम मर्की। मैं खड़ा हूँ, व्हाट तुम हैपेंस करो, इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं See लेता what हूँ। happens? What happens is जैसे मैंने एग्जांपल बताया, लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स। लीड्स। भाई करेक्ट। चलो मैं हूँ। मैं हूँ। लीडर के ऊपर कांटों का ताज होता है। सो ही इज द पर्सन हु एक्चुअली हैज द रिस्पांसिबिलिटी एंड आल्सो अकाउंटेबिलिटी, दैट करेक्ट। आई एम टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यू फोक्स टू जस्ट सपोर्ट मी। कुछ होगा तो मैं हूँ, टेंशन नहीं है, बट मैं बैठा चलो हूँ। तो साथ में, हाँ। तभी करूंगी करेंगे। तो ही इज द पर्सन इज द इनिशिएटिव, हु टेक्स द इनिशिएटिव बेसिकली। सो ही इज द इनिशिएटिव, टेक्स इनिशिएटिव एंड आल्सो मोटिवेट्स द पीपल। आपको जो दिया गया ना वो कैसा ना, वो एक बॉस का या एक मुकदम का डेफिनेशन दिया गया है कि भाई अब यही सिचुएशन मैंने बताया मुसीबतों का, मुसीबत घड़ी लो, एक बैठा रहेगा बॉस बैठा रहेगा, ही इज द पर्सन इज मोस्ट फियर्ड इन दैट सिचुएशन। वो बोलेगा मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है, मेरे नौकर तो बैठे नौकर को बोलेगा भाई तू जाकर, तू जा, तू खड्डा खोद, तू एक पत्थर निकाल, और कुछ हो जाएगा तो पैसा देना मैं तुम लोग को, जाओ करो, वही काम करे तुम लोगों का। ये एक मुकदम का काम है। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज जस्ट सेइंग कि सिंस आई हैव पेड यू, वर्क फॉर मी। करेक्ट। एंड 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 क्या होता है, रास्ता मिल गया ना तो लोग उस बॉस को उधर पटाख के निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि बोलेंगे अरे हम लोगों ने रास्ता ढूंढा है। लीडर का करेक्ट। केस में कैसा होता है, लोग सोचते हैं भाई ये है तो है हम लोग साथ में, एंड ही कीप्स एवरीवन टुगेदर। करेक्ट। सो ये डिफरेंस होता है लीडर और बॉस में प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली करेक्ट। सर टीम तो बन गई, हमने टीम तो बना ली कि कैसे कैसे बंदे हमने सब ले लिया, लेकिन अब उस टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। व्हाट एज पर यू आर रीजंस फॉर टीम कॉन्फ्लिक्ट्स? ये मेरे साथ ऐसा मोस्टली होता था, टीम मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होते कैसे है ना कि मोस्ट ऑफ टाइम इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी टीम में चाहे कितने भी, मैंने बताया ना आपकी टीम में वाटर पर्सन, स्टीलर पर्सन सब होते हैं। ऑयल पर्सन का प्रॉब्लम क्या होता है, उसके मेरे को सब बात मेरे को सिखाओ मत तू, बिकॉज करेक्ट। दो ज्यादा स्पेशलिस्ट। हम लोग क्या करते हैं, एसएमएस को उठा के लाते हैं। अब एसएमएस कैसे होता है ना, वो लोग अगर इफ इट्स वाटर पर्सन, वो बोलेगा ठीक, कोई उसको कुछ बातें बोलेगा कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ठीक है ट्राई करके देखते हैं, तू ट्राई करके देख ले। ऑयल पर्सन होगा वो, तो क्या बोलेगा, अबे छोड़ ना, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ ना, मेरे को पता है, मेरे तो को मत सिखा मत सिखा। मेरे को। अभी कैसा ना, एज ए लीडर अब क्या होगा ना, वो जूनियर जो सोचेगा मैं इसे कंप्लेंट करूँ नहीं करूँ, वो डरा रहेगा। बट लीडर को तो पता चलता कहीं तो कुछ तो हो रहा है, तो लीडर क्या कर सकता है, उसको बोला सर भाई तू इधर आ, भाई प्रॉब्लम क्या है। तो बोलेगा देख, आई नो दैट यू हैव दिस मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट दैट पर्सन इज कमिंग टू यू, इज लुकिंग टू यू एज अ काइंड ऑफ अ मेंटर।
So he came with the doubts and he suggested, can we do this? Maybe you should encourage that person and say them, at least that you will grow your respect in his mind. So लीडर को एटलीस्ट सामने वाले के हिसाब से वो समझाना पड़ेगा. करेक्ट. तो कैसा होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बहुत होते हैं. मैंने देखा आपस में, इसको ही कम काम क्यों, उसको ही ज्यादा काम क्यों. और पॉलिटिक्स. अगर टीम में, अगर अगर जो लीड है वो अगर ट्रांसपेरेंट, वो बोलेगा भाई तुमको लगता है उसका ये काम है, वो ऐसा ऐसा ये सब काम कर, तू कर पाएगा क्या? तेरी कैपेबिलिटीज तुझे पता है, उसकी कैपेबिलिटीज को पता है, तो तुम लोग तो एटलीस्ट उसको. मोस्टली क्या होता है ना, लीड्स क्या करते हैं ना, डिवाइड रूल की पॉलिसी स्टैब्लिश करते हैं. डिवाइड रूल में क्या होता है, मुझे देखना है भाई कौन मेरे कमांड में रहता है. मोस्ट ऑफ द लीडर्स हु एक्चुअली आर मुकादम्स बॉस, उनका क्या डर रहता है कि अगर मेरी टीम में सब एक साथ आ गए तो हो सकता है मेरे को ओवरथ्रो कर देंगे ये लोग, या कोई मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है. दिस इज द एग्जैक्ट फियर ऑफ ऑयल पीपल एंड एथेनॉल पीपल. एथेनॉल पीपल. उनको लगता है कि मेरे से आगे जाएगा तो मेरे को ओवरथ्रो तो नहीं कर देंगे. एंड ये सीनियर चेंज होना चाहिए. द मैनेजमेंट लीडरशिप नीड टू अंडरस्टैंड, भाई चांस सबको दो. ये जब तुम लोग किसी को चांस देते हो ना, तो आप लोग अपनी इज्जत उनके मन में बढ़ाते हो, तो उनके तो लो. तो लॉस तो नहीं है. अगर वो आपकी कंपनी के भले की बात कर रहा है तो इवेल्युएट तो करो, या फिर समझाओ भाई पॉसिबल क्यों नहीं है. जस्ट सेइंग नो, ए नो नो डजंट हेल्प. समझाना क्यों नहीं. जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग योर पोजीशन, पावरफुल पोजीशन से मैं ना बोल सकता हूँ, इसलिए ना बोल रहा हूँ, अब मेरे सामने मत आ. दिस रूइंस एवरीथिंग. करेक्ट. सर, हाउ डू यू रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट्स? क्योंकि एक बोल रहा है हाँ सर मैं तो करने तैयार हूँ, एक बोल रहा है नहीं सर मैं करूंगा. उन दोनों एक के लीडर बीच को में. सबसे एक लीडर को सबसे बड़ा ना डिटेक्टिव बनना पड़ता है. वो डिटेक्टिव खेलना पड़ता है. और बता दो कैसे. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना, कुछ टीम में उनको आग लगाने की उनको ना मसले की जरूरत होती है. वो क्या करते हैं, फालतू में आग लगाते हैं दोनों के बीच में. मीटिंग में कुछ सुनते हैं, कुछ और बोलते हैं. मीटिंग में कुछ और सुनते हैं, कुछ और बोलते हैं. तुमको पता है क्या, कल ऐसे तो बॉस ने बोला था तेरे बारे में. वो बोले क्या बोला था, अब मुझे नहीं पता, तू जाके उसको पूछ. और मैं क्या बोलता हूँ, मेरा नाम ले लेना. अभी क्या होता है ना कि फिर बोले यार बॉस ना उसको प्रीफर कर रहा हूँ, बोला था ना तेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो उसको मिलने वाला है. जबकि बॉस से बोलता है कि वो एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है, यू विल बी गेटिंग दैट अनदर मॉड्यूल. तो कैसे होता है ना कि दिस अननेसेसरी क्रिएट्स अ रिफ्ट. और फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना दोनों को आइसोलेट करना पड़ेगा. भाई तू मीटिंग में आ, बता वन टू वन लो उससे बोल क्या प्रॉब्लम क्या है. तो करेक्ट. लिसन, ऐसे ऐसे एंड बी न्यूट्रल. ऐसे नहीं कि व्हेन यू स्टार्ट प्रीफरिंग समवन तो क्या होगा, दूसरा जो बोल रहा है उसको रिजेक्ट ही करोगे आप. ओपन माइंड रखना, बिकॉज सब आपके लिए. बात करो भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बोल भाई तूने एम्पैथाइज किया क्या, समझा है कि उसका प्रॉब्लम क्या है. उससे नोट्स लो. दूसरे वाले को बोलो भाई तेरा प्रॉब्लम क्या बता, उन्हें उसने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, ठीक है दोनों के लेके आओ. पहले स्टडी करो क्या प्रॉब्लम है. फिर क्या होगा ना, फिर दोनों को बोलो पहले वन ऑन जाके, भाई हो सकता है तुझे जो इन्फॉर्मेशन वो आधा इन्फॉर्मेशन है, मुझसे बात किया ना तूने, सो दिस इज द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन व्हिच आई एम गिविंग यू. अननेसेसरी डोंट मिसअंडरस्टैंड. और अपना टीम है तुम लोग, हम लोग सब दोस्त है ना रिश्तेदार है. हम लोग यहाँ पे काम करके अपने अपने घर पे निकल जाना है. हमें क्या दोस्ती यारी दीवानी नहीं बैठने यहाँ पे. करेक्ट. तो इट्स, हम लोग काम कर रहे, वी आर गेटिंग सैलरी फॉर इट, एंड हम लोग को एक कंपनी या टीम के भले के लिए काम करना है. सो पर्सनली लेके कोई मतलब नहीं है. सो इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि कंपनी ना मेरी खुद की है. इनफैक्ट कंपनी बॉस की भी नहीं होती. कंपनी जो होती है इस इटसेल्फ इज एन एंटिटी इन इट्स ओन. जो सीईओ होता है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है. तो इट्स लाइक अल्टीमेटली इट्स अ कंप्लीट मॉड्यूल, और इट्स अ कंप्लीट सिस्टम दैट्स वर्किंग. एक पुर्जा भी गलत हो गया तो पूरा पूरा सिस्टम ही नीचे आना है. सिस्टम नीचे आना है, डोमिनोज जैसा. हाँ. करेक्ट. सर आपने सही समझाया लीडर्स का कि कैसे उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब खुद भी समझना चाहिए और खुद भी समझाना चाहिए सामने वाले को. राइट. सर हम्म. एनी मैसेज टू द यंग लीडर्स टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस? तो यंग लीडर्स में आजकल क्या देखा है ना, मैं देख रहा हूँ ये लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग के पुराने शास्त्रों में लिखा था ना कि अलग अलग अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ अवस्था. वो एक्चुअली डिफाइन क्यों किया है पता है? क्योंकि आई विल माई ओन डॉटर, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड. अब बाकी बच्चे देखते हैं वो लोग कोडिंग करते, ये करते, वो करते, ऐसे करते, वो करते हैं. माई डॉटर एक ही चीज बोलती है कि लेट मी एंजॉय माई चाइल्डहुड. दिस इज द एग्जैक्ट मैसेज. सो बेसिकली क्या होता है ना, आज के तारीख में हम लोग इतना रैट रेस कर रहे हैं ना कि बच्चों पे ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है. रैट रेस तो कर रहे हैं, पहले बोलते पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर. अब तो ये बना वो बना ऐप बना ये कर. उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि वो ना इधर के थे ना उधर के थे. सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को नाम कमाना है, मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है. अरे पर तू पहला खुद क्या है वो तो पहचान ना. करेक्ट. करेक्ट. अंदर का खून एंड तो माई जगह क्या मैसेज इज करना है. लाइक, माई मैसेज इज, अगर आपको सच में देखना है ना कंपनी जोड़ना है या फिर खुद, तो पहले ना एम्प्लॉय बनो किसी स्टार्टअप का. पैसों के जमा भागो. क्योंकि जब किसी स्टार्टअप में प्रोडक्ट कंपनी एम्प्लॉय बनते हो ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एम्प्लॉय के.
भले आप अमीर हो, आपके माँ बाप के बहुत बड़े जायदाद होंगे, फिर भी आपको किसी एक स्टार्टअप कंपनी में एज ए एम्प्लॉय छोड़ के कि यू आर समथिंग, बिकॉज जो भी आपके माँ बाप का खुद का नहीं है, बी एन करेक्ट। एम्प्लॉय इन अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी, जहाँ पे आपको पता चलेगा आपका प्रॉब्लम्स क्या है, आपको क्या सीखना पड़ता है, ग्रास रूट लेवल से सीखो। टेक्नोलॉजी में जब सीखे ना कॉलेज में, प्रैक्टिकल यूज करना, इंप्लीमेंट करना शुरू करो। उसके बाद क्या होगा, यू स्टार्ट लर्निंग एंड यू स्टार्ट टू नो द चैलेंजेस of working as a employee, and then you start gaining expertise and then seniorship as you progress, क्योंकि उसमें आप अर्न करते हो। खुद की कंपनी डाल के सीईओ बनना आसान होता है, पर आजकल जो बड़े बड़े सीईओ है उनको वहां तक पहुंचने के लिए डिकेड्स लग गए। और वो जिस पोजिशन में बैठे हैं ना, उसमें सिर्फ उनके पास वो टेक स्किल्स है, उनके पास बिजनेस स्किल्स है, सीनियरिटी स्किल्स है, वो सारी स्किल्स हैं, मतलब इससे आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं। मैं खुद की कंपनी डाल के सीईओ वाला खुद, मैं जो वहाँ पे आज 20 सालों के बाद हूँ, मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह करेक्ट। से मैं आज बात कर सकता हूँ और एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो पैसों के पीछे मत भागो, इन्फ्लुएंसर बनने के पीछे मत भागो, इसके पीछे उसके वजह से ग्लैमर के पीछे मत भागो, ग्रास रूट लेवल पे जाओ। तो पहले आप ना, सबसे पहले किसी कंपनी में से एम्प्लॉय जाओ, समझो इकोसिस्टम को, समझो वहाँ पे बाकी लोगों से इंटरेक्ट करो एज पीयर्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स। स्लोली 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 जब आप अपना एक्सपीरियंस दिखाने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप सीनियर बनते हो, वो सीनियरशिप आपने कमाई होती है। देन यू बिकम अ लीड, देन अ मैनेजर। धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा, तब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जब आपको पता चला कि भाई कंपनी चलाने के लिए हम लोग को फंड्स भी लगते हैं, टीम को फंड्स। तो धीरे धीरे आप सीखते 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 आपको वो मैच्योरिटी आती है कि भाई मुझे कंपनी फॉर्म करनी है। लिंक्डइन के ऊपर 10 बड़ा कंपनी रखना आसान होता है, बट हकीकत में जब कंपनी खोलते हो ना, तो कई बार ये लोग, इनके स्टार्टअप्स बंद इसलिए होते हैं क्योंकि होता क्या है कि ये लोग इमेच्योर लेवल पे, जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग, दे स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग एंड दे सो कि आज इज स्टार्टअप, फिर फंडिंग लेते हैं, फिर फंडिंग और वीसीस के पास जाते हैं, वीसीस उनको फंड तो करते हैं, पर यही लोग ना गड़बड़ करते हैं। ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर क्या होता है, कंपनी लॉस में आती है, फिर वही बेसिक जो बोर्ड होते हैं वो उनको हकल देते हैं कंपनी से, एंड देन से ओ, मैंने कंपनी फॉर्म के मेरे को हकल दिया। पर क्यों, पता करना। करेक्ट। वो जर्नी अगर तो आप लोगों ने पूरी की हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, फिर आप वो अनफॉर्चुनेट गलतियां नहीं करते। मेरा यही मैसेज है, स्टे लो प्रोफाइल। पहले नॉलेज और स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज पे ग्रो करने पे फोकस करो, ना कि ग्लैमर के पीछे भागो। करेक्ट। देन यू विल बी सक्सेसफुल। सर का होप आई एक, आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, सर का एक ही कहने का मतलब है कि भाई स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ो। ऐसा नहीं कि एक चढ़ गई, दो चढ़ गई, अरे मेरे को तो सब कुछ आने लग गया, सीधे 10वीं सीढ़ी पे आप चढ़ जाओ, नहीं। 1 2 3 4 एक एक स्टेप करते जाओ, तब आप अचीव कर पाओगे। लेकिन जैसा अभी सर ने बोला कि तुम सीईओ खुद को मान रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद आपको जाके आपको ही निकाल देंगे। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलो। एंड बाकी एक्सपर्टीज बैठी है ना हमारे पास में, प्रवीण इसका सर है। सिंपल एग्जांपल, देता हूँ मैं। आज के तारीख में ये होता है, लोग बोलते हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, पैशनेट होता है, मुझे डेटा साइंस करना है, मुझे एआई करना है। अरे पर वो सब ना सिर्फ जार्गन से वर्ड्स है, साइबर सिक्योरिटी पहले भी था, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में उतरने से पहले पहले उसका बेसिक्स को तो सीख लो। बेसिक्स। करेक्ट। हार्डवेयर सीख लो, नेटवर्किंग सीख लो, एआई करने से पहले डेटा साइंस सीखने से भी पहले तुम लोग पहले एसक्यूएल वगैरह तो सीख लो, डेटा कैसे मैनेज होता है वो तो सीख लो, डेटा वेयर तो सीख लो। सी कैसे होता है, हर एक चीज का फाउंडेशन होता है। लोग क्या करते हैं, सीधा ना पैशनेट होते हैं इंडस्ट्री में और कूद जाते हैं ऊपर, और फिर क्या होता है, बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यही हो रहा है सबके साथ। करेक्ट। होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सर की बातें सब समझ आई होगी। अगर आपको सर से पर्सनली बात करना है, मैं लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एपिसोड यहीं खत्म नहीं होगा, आप प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में जरूर हम सर को एक बार और लेके आएंगे हमारे पास पे, एक बार क्या 10 बार लाएंगे आप सभी के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर।